جی ویلکم بیک ناظرین، پروگرام تنہانی کسان میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور یہ دوسرا سیشن ہے اور میں موجود ہوں اپنے کاشتکار بھائیوں میں، اور میں پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح پہلے سیشن میں بات ہوئی کہ یہاں پہ گنے کی فصل کے حوالے سے یعنی ایک بڑا ہی پرانا ٹرینڈ چل رہا تھا، کوئی ترقی کی طرف ہے نہیں، تو بھجن پلیز آپ ایک دم ہو گئے، مطلب کچھ نہیں، بالکل میں آپ کو کہا نا میں 2 کا پہاڑا پوچھوں گا جو آپ کو آتا ہے، 9 7 کا نہیں پوچھوں گا۔ آپ کا نام؟ اورنگزیب۔ اچھا جی اورنگزیب صاحب، آپ کاشتکاری کرتے ہیں؟ جی سر۔ اچھا، جس طرح حاجی صاحب نے بتایا، چوئی صاحب نے بتایا، تو واقعی یہ ٹرینڈ تھا؟ جی ٹھیک انہوں نے بتایا۔ ایرا مطلب تساں بچپن ہے کوئی میٹھے چول نہیں کھا دے؟ نہیں جی۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ جنہیں میٹھے چول نہیں کھا دے وہ کی کرے گا؟ اچھا، کا مطلب نہ میٹھے چول کھائے اور کھیر کھائی ہے تو اس پہ کیا مطلب کیا میٹھا تو کچھ ڈلتا ہوگا نا؟ چینی تھوڑی مالی آتی، تو وہ کہاں سے آتی تھی؟ ہونی نہیں ہے سڑی عمر۔ اچھا، یعنی جب آپ کی عمر ہوئی ہے تب ناظرین چینی آئی ہے، ورنہ وہ بھی نہیں آتی تھی، میٹھے چولے نہ واقعی نہیں کھاتے۔ تو میں اور میرے بھائی جو ہیں میں ان کے پاس جاؤں گا کہ ان سے بھی پوچھوں کہ اس علاقے کے اندر جو ہمارا ٹرینڈ تھا کہ بالکل ہی جی بھجن آپ ذرا پلیز۔ جی آپ کا نام؟ محمد فیصل جی۔ اچھا فیصل صاحب، آپ کی عمر ان سے تو زیادہ ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے میٹھے چول کھائے تھے کہ نہیں؟ چاول کھائے تھے جی۔ وہ کس طرح؟ بس بلوچستان سے آ گیا، ادھر سے آ گیا جی۔ چینی؟ چینی بھی باہر سے آتی تھی پہلے تو۔ اللہ اکبر، یعنی چینی یہاں تھی نہیں، گنے کی فصل کماد کی ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود یہاں نہ گڑ بنتا تھا نہ شکر؟ بالکل، گڑ تھوڑا تھوڑا لوگ بناتے تھے جانوروں کے کھانے کے لیے۔ جانوروں کے کھانے، گڑ بھی جانوروں کے کھانے کے لیے؟ ہاں جی۔ تو انسان کیوں نہیں کھا سکتے تھے؟ ان کو طریقہ نہیں آتا تھا بنانے کا جی۔ اچھا، یعنی گڑ اس طریقے کا بنتا نہیں تھا کہ وہ انسانوں کے کھانے کے قابل ہو سکے، تو وہ بھی سارا جانوروں کو؟ بالکل جی۔ اتنی آپ محنت کرتے تھے جانوروں کے لیے تو کوئی اور فصل ہی بو دیتے پورے سال کی؟ ابھی ہمیں کچھ پتہ چلا ہے بھائی، ہم زمینوں پر محنت کریں تو یہ ہماری جو گورنمنٹ ہے انہوں نے سارا نظام درم برم کر دیا، اتنی مہنگائی کر دیا ہے، بل زیادہ آ جاتے ہیں، بجلی رہتی نہیں ہے، کھادیں بہت مہنگی ہو گئی ہیں، ڈیزل بہت مہنگا ہو گیا، پھر ہم کیسے آگے ترقی کر سکیں گے؟ نہیں، باتیں آپ کی بالکل ساری صحیح ہیں، لیکن میں ابھی تک اس حیرت کے جھٹکے سے نہیں نکل سکا کہ گڑ بھی بننا ہے تو وہ بھی جانوروں کے لیے۔ چلیں خیر، آپ تشریف رکھیں۔ جی ناظرین، یہ حالت مقصد آپ دیکھ رہے ہیں پریکٹیکلی، نہ میں کہہ رہا ہوں نہ کوئی اور کہہ رہا ہے، بلکہ جو یہاں کے باشندے ہیں، کاشتکار ہیں اس علاقے کے، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یعنی بوسوں نے میٹھے چاول نہیں کھائے، اگر چینی آتی تھی تو باہر کے علاقے سے آتی تھی۔ تو میں جی آپ کا نام؟ کاظم علی جی۔ ہاں کاظم علی صاحب، میں آپ کے پاس مقصد میں نے دیکھا تھوڑی آپ کی عمر زیادہ، کیونکہ میں ایک چیز معلوم کرنا چاہ رہا ہوں کہ کب سے میٹھے چول شروع ہوئے ہیں کھانے؟ تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کے علاقے میں بھی یہاں بالکل یہی رواج تھا کہ کوئی مثلا گنا صرف جانوروں کے لیے؟ گنا جناب جیڑا نا ڈھیر کاشت ہوئی ہے جدوں مل بنی جی۔ اچھا، اس سے پہلے نہیں؟ اس سے پہلے نہیں جی۔ کیوں؟ اس دی وجہ جی پہلے ویلنے ٹھلی جی گل ہے، ویلنے چلتے ہیں، گڑ بندا، کھنڈ دیسی بنتی ہے۔ اچھا جڑی استعمال لوگ کرتے ہیں۔ اچھا، یعنی اس کے علاوہ کچھ نہیں، بس جو تھوڑا بہت بن گیا وہ؟ جی تھوڑا بہت ہے۔ تو کبھی مقصد آپ نے نہیں سوچا جب آپ کی جوانی ہوتی ہے تو جوانی کے اندر تو انسان کا ذہن بڑا مقصد کام کرتا ہے، ماشاءاللہ ابھی بھی آپ کی عمر کچھ زیادہ نہیں ہوئی، تو آپ نے نہیں سوچا کبھی مثلا میاں والی گئے ہوں، آگے لاہور گئے ہوں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، یہاں اسی طریقے سے یہاں بھی ہم کریں؟ نہیں جی، ادھر جانا ہی نہیں ہوا۔ اچھا، جانا ہی نہیں ہوا؟ چلیں تشریف رکھیں۔ جی ناظرین، یہ حالت ہے، مقصد ظاہر ہے کہ یہ جو ہم آج سڑکیں، روڈ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، یہ اس زمانے میں کوئی اتنے زیادہ نہیں تھے کہ آدمی آسانی سے سفر کر پاتا، تو بڑی ایک مقصد بدقسمتی ہماری سمجھ لیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جانا ہی نہیں ہوا۔ اب ظاہر ہے کہ جانا ہی نہیں ہوا تو وہ اس علاقے کے اسیر ہو کے رہ گئے تھے کہ جو یہاں اس علاقہ ہے یہی ان کی دنیا ہے۔ جی بھائی جان پلیز، آپ کا نام؟ محمد رضا۔ محمد رضا۔ اچھا جی محمد رضا صاحب، یہ تو میں نے آپ کے بزرگوں سے بھی پوچھا اور بھی پوچھا، تو آج کل جو پوزیشن ہے وہ کیا پوزیشن؟ آج کل تو چینی مل رہی ہے۔ نہیں، چینی تو مل رہی ہے، ظاہر ہے کہ شوگر مل بھی لگ گئی یہاں پہ، کماد بھی لگ گیا، تو شوگر مل والے بھی چینی ظاہر ہے بنائیں گے۔ تو آج جو یہاں ٹرینڈ ہے کچھ بہتری کی طرف جا رہا ہے؟ جی بہتری پہ جا رہا ہے۔ اچھا، فی ایکڑ پیداوار اس وقت کیا ہے تقریباً؟ 900 من۔ 900 من گنے کی ہے؟ 1100 من ہے گنے کی پہ؟ تو اس سے آگے کا بھی آپ کو پتا ہے کہ دنیا کے اندر تو تقریباً برازیل 2600 من لے رہا ہے اور 4000 من فی ایکڑ تک جا رہی ہے، تو اس سے آگے جانے کا بھی آپ کے اندر کوئی عزم حوصلہ ہے کہ اس سے ہم آگے بھی لے کے جائیں؟ ماشاءاللہ، جو محنت کرے گا وہ اس کو ملے گا بھی۔ اچھا، نہیں، ایک رضا صاحب محنت ہوتا ہے، دوسرا ہوتا ہے کہ محنت جو ہے طریقے سے کی جائے، کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ محنت کرتے ہیں لیکن بے طریقہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح وہ ایک پنجابی میں محاورہ ہے کہ ویلے دیاں نمازاں تک ویلے دیاں ٹکراں، تو اگر آپ محنت اس طریقے سے کریں گے اس کا کوئی فائدہ نہ ہو
तो वो मेहनत जो है वो तो बेसमर हो जाएगी ना। जी जी तो जिस तरह अली अकबर ग्रुप वाले आपके पास हैं, जी जी अगर इनके पास आप जाएं, ये ज़ाहिर है कि एक डॉक्टर हैं ज़राअत जी के, जी। तो जो तरीका डॉक्टर बताएगा उस तरीके से अगर करें तो ज़्यादा बेहतर फसल हासिल नहीं कर सकते? बहुत बेहतर फसल आ जाएगी। आ जाएगी। जी जी चलें तशरीफ़ रखें जनाब। जी नाज़रीन, ये एक चीज़ थी कि मेहनती हमारा काश्तकार है, बिल्कुल मेहनत करना चाहता है, सब कुछ उसके पास है, अज़म भी है, हौसला भी है। वसाइल की जो है ज़ाहिर है कि इन इलाकों में कमी है, और वसाइल के लिए गवर्नमेंट को गुजारिश करते रहते हैं कि वो सब्सिडी भी दे और काश्तकार को जो है वो मुहैया करे वसाइल भी। जी जनाब, प्लीज़ आपसे आपसे वालेकुम सलाम, आपका नाम जी? मोहम्मद बख्श। जी मोहम्मद बख्श साहब, यहाँ मालूम किया कि उन्होंने कहा कि जी पहले गन्ने की फसल नहीं थी, अब हो रही है, तो गन्ने की फसल के अलावा यहाँ कौन सी फसलें हैं? गन्ने की फसल भी होती है, पहले दो तीन चार एकड़ पाई, कोई डंगरा नु पाए, कुछ गोड़ कटिया। अच्छा, डंगरां ਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? डंगरा नु लाजमी पैंदी आ। ਤੇ ਡੰਗਰਾਂ ਸੇ ਕੋਈ ਸਟਾਲਾ ਸ਼ਟੂਲਾ ਦੂਸਰੀ ਮਸਲ ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ? फसल ये बेचना होवे ना तो वो रजदे ही ने। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਰਾਸਤ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ नहीं। जी हाँ, वो नहीं रोक सकते। अच्छा, तो यहाँ ये कि गन्ना जानवर मीठा खा रहे हैं लेकिन आप महरूम थे। आप ही खांदे तो दसे ने भी ऐसे गुड़ भी कट दिया, शक्कर भी कट दिया, उसे देसी चीनी नहीं कर दिया, अच्छा अच्छा वो भी कट दिया बंदे। अच्छा, जी हाँ। तो आप गन्ने की फसल काश्त करते हैं? हाँ, कितने एकड़ पे आपके? 3-4 किले था। अभी जो आप मतलब पिछले साल जो आपने फसल हासिल की, एक एकड़ से कितनी की? बस हुन 600-700 मान निकल जाती। कुछ ज्यादा बढ़ाएं, ये कुछ भी नहीं है। वो कुछ भी नहीं, मेहनत से रगा, पानी बिजली कोई नहीं, पानी कोई नहीं, खादा महंगी, हर शय महंगी, अपनी जान भी रखना होता है। बिल्कुल जी, जान को बिल्कुल देखना पड़ता है कि गर्मी भी है, सब कुछ है, लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, जान हमने भी देखना होता है। जिस तरीके से हम पहुंचे हैं ना यहाँ पे, जब मैं आया हूँ तो आप मेरी हालत देख रहे थे, लेकिन ना हमारे आज़म और हौसले में कमी आई है और ना आपके में आनी चाहिए। रही पानी की बात, तो मैं थोड़ा सा गुजारिश करूंगा मंसूर सना साहब से कि पानी की कमी के हवाले से अली अकबर के पास कोई ऐसी प्रोडक्ट हो कि जो कम पानी में भी फसल की पैदावार को मकसद बढ़ाए और वो मुतासिर ना हो, अगर है तो ज़रा प्लीज़ ब्रीफ कर दें। सर, जैसे मैं आपको पहले बता रहा था, ये जो बूस्टर सुपर के हवाले से सर, अच्छा जी जी, ये बाजार तो आपको ह्यूमिक एसिड है, लेकिन इसके जो फ़ायदे हमें हासिल होते हैं, एक तो ये आपको बताया कि ज़मीन के ज़रात खुल जाते हैं और फसल आसानी के साथ अपनी खुराक लेनी शुरू कर देती है। दूसरा मेजर फ़ायदा इसका ये है सर कि ज़मीन के अंदर जो वत्तर है वो ज़्यादा देर तक रहता है। जो बंदा ये प्रोडक्ट इस्तेमाल, बूस्टर सुपर इस्तेमाल करेगा, वो ज़मीन में आप पानी लगाएंगे तो वो ज़्यादा देर तक ज़मीन के अंदर रहेगा, ज़मीन के ऊपर नहीं रहेगा। ज़मीन जो जड़ों के अंदर जिसमें खुराक होती है वहाँ तक वत्तर ज़्यादा देर हाल तक रहेगा, इससे आपकी पानी की बचत भी हो सकती है। जी मंसूर साहब बहुत शुक्रिया। सर, मैं प्लीज़ आपसे गुजारिश करूँगा, आपका नाम? गुलाम अब्बास। जी गुलाम अब्बास साहब, सबसे राय मैंने ली यहाँ फसल के बारे में, तो आप भी गन्ने के काश्तकार हैं? गन्ने की काश्त भी है, दूसरी भी काश्त होती। अच्छा, आप फी एकड़ पैदावार कमाद की कितनी ले रहे हैं? साढ़े कोल जी 700-800 मान जी, ज़्यादा तो ज़्यादा होती। तो इससे ज़्यादा हासिल करने के लिए क्यों नहीं मसला तक दो करते हैं? इतनी जी ताकत पैसे नहीं होंगे जो खाद पर गत लगी। तो यहाँ जो शुगर मिल वाले हैं वो मकसद आपको नहीं बताते कि कर्जा लेना जेड़ा ना जी वो मुनासिब नहीं से समझ। नहीं, कर्जा वो किस सूरत में, नकद देते हैं या इजनास की सूरत में? मसला जिस तरह दवाइयाँ हो गई इस सूरत, वो जी देंगे खाद खोद देंगे, तो वो आप ले लें, खाद लें, उससे बेहतर फसल हासिल करें। जब उन्हें फसल बेचने जाएं आप, मकसद अगर ज़्यादा फसल होती है आपकी तो वो आप कर्ज कटा दें। डर दे आए जी कर्जे। नहीं गुलाम अब्बास साहब, डरने की बात नहीं है कि अगर आपको फ़र्ज़ करें कि वो 5,000 की अद्वियात देते हैं, खाद देते हैं या दूसरी जितनी भी है, और आपकी 25-30 हज़ार अगर फसल में फ़र्क पड़ जाए, जी मुड़ो दे लग गए तो मुड़ो दे ना सकिया, मुड़ जी हो रोले पाएगी। नहीं वो इस तरह तो नहीं है कि जिस तरह पुराना है एक शुरू में आया कि जब फसल की कटाई होनी है तो आपने पूरे साल दुश्मनियाँ भी रोकी हुई होनी है। यही हो जी फसल हैं? ये गल है जी। तो खुदा का वास्ता छोड़ देना, बस जी मोड़े पे ये थे चलता पुराना। यानी आप दुनिया देखें कहाँ चांद पे पहुंच चुकी है, आप अभी तक उसे बस जी पानी जी चांद पे पढ़ाई खलोता है जी वो। जी बिल्कुल तशरीफ रखे जी। जी नाज़रीन, बात बिल्कुल एक मज़ाक में हो गई, लेकिन बात बहुत एक संजीदा है कि उन्होंने कहा कि पानी हमें चांद पे पहुँचा रहा है, तो यहाँ पे पानी भी मिलना चाहिए, खाद भी मिलनी चाहिए, बीज भी बर वक्त और दस्तयाब होने चाहिए और ठीक क्वालिटी के।
जिस तरह पहले भी बात होती रही है कि बीज जो है एक बड़ी बेसिक चीज़ है, तो जब वही बर वक्त नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगी, बिजली, तो ये सारे मसाइल तो हैं। जी भजन, आपका नाम? आमिर अली शाह। अच्छा शाह साहब, आप भी इसी इलाके के हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, आप कमाद के काश्तकार हैं? जी कमाल काश्तकार। आपकी बारह को पैदावार? जी यही जो बता रहे हैं ना, बस 700-800 मन 900 मन 900 एवरेज के हिसाब से। अच्छा, यहाँ मकसद अभी उनसे बात, उन्होंने कहा कि जी मैं कभी यहाँ गया ही नहीं था लाहौर और इस तरफ, लेकिन आजकल तो ट्रांसपोर्ट भी है, सड़कें भी बेहतर हैं, नेट भी है, हर जगह अवेलेबल है। तो आप मकसद देखें कि दुनिया कहाँ जा रही है, आपको कभी शौक़ हुआ कि दूसरे ममालिक के अंदर या पाकिस्तान के अंदर ही 1000, 1200, 1500 मन फी एकड़ तक ली जा रही है, तो उस मकसद मुकाम तक हम पहुँचें और उस सतह तक पहुँचें और हम भी ये फसल हासिल करें? जी बिल्कुल, दिल तो करता है कि इतनी एवरेज हमारी भी हो, लेकिन इधर वही बात आती है ना कि वसाइल की कमी है। एक पानी का मसला है, खाद का मसला है, गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, रिलीफ है नहीं गवर्नमेंट का इतना। बाकी खाद जो है वो जो बात कर रहे हैं वो कभी कभी वो जो मिल वाले देते हैं, कभी किसी साल नहीं देते। तो ज़मीनें भी बहुत ज़्यादा, अगर वो उनको ज़्यादा खाद वगैरह ना डालें तो उससे भी वो फिर एवरेज ज़्यादा नहीं आती। अच्छा, नहीं, जिस तरह गुलाम बाद साहब ने कहा, तो आपका भी यही है कि कटाई का मौसम आने से पहले आपने पूरा एक घर में जाना है और सोचना है कि उन दुश्मनी की दिन करनी है? जी इसी तरह। खुदा को माने, क्यों नहीं छोड़ देते? नहीं भाई, वो बात उनकी ये है ना कि और भी फिर मसाइल वगैरह हैं। नहीं, मसाइल सारे अपनी जगह पे, लेकिन देखें हम मुसलमान हैं, सब भाई भाई हैं, तो मकसद ये सारी चीज़ें छोड़ के हम तरक्की की तरफ क्यों नहीं जा रहे? जी कोशिश तो आजकल सब की है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आगे जाएं, लेकिन हर कोई वो देखता है कि अपनी चादर देख के पाँव फैलाएं, तो इसी हिसाब से चलता है। चलें, आप तशरीफ़ रखें। हाँ जी नाज़रीन, ये भी एक दही ट्रेंड है, जिस तरह मैंने बात किया, और बदकिस्मती है कि है तो है, हकीकत यही है। बहरहाल इसको, इस ट्रेंड को ख़त्म होने में, जिस तरह ये ट्रेंड ख़त्म हुआ है कि 8-10 मन से अब पैदावार बढ़ के गंदम की और कमाद की जो है 150-200 मन से बढ़ के 800-1000 तक पहुंची है, तो ये ट्रेंड भी इंशाल्लाह ख़त्म होगा। जी प्लीज़, आपका नाम? हाकिम खान। जी हाकिम खान साहब, आपका तो नाम भी माशाल्लाह हाकिम भी है, खान भी है, तो ਤੁਹਾਡੀ भी यही चक्कर है? नहीं जी, फिर कमान का दिन लाया जी। अच्छा, आप कमाद की फसल काश्त करते हैं? कम करते हैं जी। अच्छा, तो अगर कम करते हैं, कितनी फी एकड़ पैदावार आप ले लेते हैं? मेरे पास मैंने लगाई कोई नहीं कमान। अच्छा, तो यहाँ इस इलाके में ट्रेंड बढ़ रहा है वैसे कमाद की फसल? तकरीबन 1200 मन तक यहाँ पे गया है। 1200 मन तक गया है, यानी इसी इलाके में गुलाम बाद साहब और शाह साहब, उन्होंने कहा कि 1200 मन तक गया है। जाहिर है कि उन्हें भी प्रॉब्लम होगी, मसाइल होगी। एवरेज के हिसाब से ना कोई किला 1500 भी हो जाता है, कोई 800 एवरेज काउंट करके ना। जी जी, काउंट करके वो 800-900 मन जो एवरेज बन जाती है। कोई ज़मीन ज़्यादा दरखेज हो तो वो फिर 1500 मन भी हो जाती है, 1400 मन भी होती है। यहाँ ज़मीनें मुख्तलिफ किस्म की हैं, कोई रेतली हैं, कोई ज़्यादा अच्छी दरखेज ज़मीनें हैं जो फिर ज़्यादा एवरेज होती है। अच्छा, नहीं, बात वही आ जाती है कि अगर रेतली हैं या नाकाबिले काश्त हैं, तो उन्हें काबिले काश्त बनाना भी तो आपका काम है ना, कि उन्हें काबिले काश्त बनाएं और उसके ऊपर आप काश्त करें, उसके बाद आपकी पैदावार बढ़ेगी। जिस तरह 2000 मन से जा सकती जी, अगर बिजली रह जाए तो 2000 मन से जा सकती। नहीं, बिजली बिल्कुल आपकी बजा बात है, लेकिन बिजली का भी हल है, मैं आपको बताऊं। जी आप तशरीफ रखें। बिल्कुल बिजली का भी हल है नाज़रीन। यहाँ पे बात बिल्कुल है कि पानी की कमी है। जिस तरह पानी की कमी के हवाले से मंसूर सना साहब ने बताया कि बूस्टर सुपर उनकी एक प्रोडक्ट है, वो इस्तेमाल करें। पानी की कमी के हवाले से मैं बिल्कुल गुजारिश करूँगा, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम का वो मौजू नहीं है, लेकिन अली अकबर वालों के पास ही जाएँ तो आपको सोलर एनर्जी के हवाले से वो आपको ब्रीफ करेंगे कि सोलर एनर्जी अगर आप लगाएंगे, उसका एक पैकेज है। अगर एक काश्तकार वो बर्दाश्त नहीं कर सकता तो 25-30 काश्तकार मिलके एक गांव के वो सोलर एनर्जी का जो सिस्टम है वो लगाएं, उससे आपका ट्यूबवेल चलेगा और तकरीबन 20 साल के लिए आपकी बिल्कुल बिजली के बिल से जान छूट जाएगी। जी नाज़रीन, ये हमारा जो सेशन था ये मुकम्मल हुआ, जिसमें हम अपने काश्तकार भाइयों से उनके मसाइल पूछते हैं, और इस हवाले से बात फिर वही आ जाती है। मैंने पिछले कई प्रोग्रामों में कहा कि मसाइल हैं, रुकावटें हैं, मुश्किलात हैं, लेकिन हमें इन्हें अबूर करते हुए अपनी मंजिल तक पहुँचना है, क्योंकि मंजिल हमारी मुंतज़िर है और इंशाल्लाह मंजिल पर पहुंचेंगे। हमारे साथ रहिएगा तीसरे सेशन में। जिस तरह के आपको मालूम है कि हमारे जो यहाँ पे कुरानदाजी होगी, और कुरानदाजी में हम अपने जिन काश्तकार भाइयों के नाम निकलेंगे उन्हें इनाम देंगे। तो देखिए कि आज हमारे कौन से काश्तकार भाई हैं इस इलाके के जिनके इनाम निकलते हैं।